हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो हमने 10th क्लास का पोलिनोमियल चैप्टर का पढ़ा। उसमें हमने क्या पढ़ा था? ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस पढ़ा था, राइट? अब उसी को कंटिन्यू करते हुए फर्दर टॉपिक इज रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। नाउ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में डिग्री 2 है, उसकी जीरोस भी 2 है। लेट अस से अल्फा एंड बीटा आर zeros of quadratic polynomial ax square plus bx plus c equal to c, where a, b, c are constants, a should not be equal to 0, right? तो क्या होगा, हमने 9th क्लास में पढ़ा था फैक्टर थियरम। अगर अल्फा उसका 0 है तो x माइनस अल्फा इज फैक्टर एंड बीटा इज 0, देन x माइनस बीटा इज फैक्टर. So these two are factors of px. So we can write ax square plus bx plus c equal to x minus alpha into x minus beta into any constant k. So there are two relationships for quadratic polynomial. First is sum of zeros. Let us say alpha and beta are zeros. So we can say alpha plus beta, sum of zeros, alpha plus beta equal to minus b by a, where b is coefficient of x. ये है हमारा polynomial में ये, right? x का coefficient. And a is coefficient of x square, this one. Now another relationship is product of zeros. So alpha into beta. So alpha into beta equal to c by a, where c is constant term and a is again coefficient of x square. Now we'll solve one example based on relationship between zeros and coefficients. So here polynomial is given. We have to find zeros of this polynomial and verify the relationship between zeros and coefficients. So first of all we need to find the zeros. Zeros यहाँ पे पहले फाइंड करना है. नाउ पोलिनोमियल इज दिस एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10. तो इसे हमें दो फैक्टर्स इसके निकलेंगे. कैसे निकलेंगे? यूजिंग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. सो दिस इक्वल टू, स्प्लिट कैसे करते हैं? कांस्टेंट टर्म इनटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. हियर इट इज 1 एंड 10. सो 1 इंटू 10 इज 10. 10 के दो ऐसे फैक्टर जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे ये x का कोएफिशिएंट मिले. तो यहाँ पे प्लस 7 लाना है. 10 के दो फैक्टर्स 5 एंड 2, राइट? 5 2s are 10 and 5 plus 2 is 7. So I'll split 7x as 5x and 2x. So x square plus 5x plus 2x plus 10. Now taking these two and these two, यहाँ पे क्या कॉमन निकलेगा? x. So we will get x plus 5 and here 2 is common, so x plus 5. So x plus 5, x plus 5 in one bracket because it is common, and remaining in another bracket, that is x plus 2. So here we got two factors for this px, that is x plus 5 and x plus 2. तो हमारे zeros क्या बनेंगे? Zeros बनेंगे minus 5 and minus 2. कैसे? x plus 5 equal to 0. This implies x equal to minus 5 and x plus 2 equal to 0. This implies x equal to minus 2. Now let alpha and beta are zeros of px. Therefore we can say alpha equal to minus 5 and beta equal to minus 2, right? Now we will verify the relationship. रिलेशनशिप में हमारे पास अल्फा इक्वल टू माइनस 5 एंड बीटा इक्वल टू माइनस 2 आया है. तो फॉर रिलेशनशिप सम ऑफ जीरोज इज अल्फा प्लस बीटा. दिस इक्वल टू, अल्फा हमारा माइनस 5 है, बीटा माइनस 2 है. सो दिस इज माइनस 5 प्लस माइनस 2 एंड दिस विल बी माइनस 7. अगर हम इसे b बाई ए चेक करें, माइनस b बाई ए, तो हमारा पोलिनोमियल क्या था? एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, राइट? तो माइनस दिस इक्वल टू माइनस b is 7 upon 1, so it is minus 7. Therefore alpha plus beta equal to minus b by a, इसको लिखेंगे verified. This relationship is verified. एक हुआ. Now product of zeros. Product of zeros alpha beta, this equal to minus 5 into minus 2 is equal to 5 2s are 10 and minus minus plus, right? So it is plus 10. And if we take c by a, then c by a equal to क्या होगा? c is 10
and A is 1. So this equal 10. Therefore, alpha beta equal to C by A. This is also verified. सेकंड रिलेशनशिप ऑल्सो वेरीफाइड. तो ये है रिलेशनशिप का वेरिफिकेशन. अगर आप इसे दोनों एक साथ लेकर करना चाहे, जैसे कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई लेकर करें दोनों LHS एंड RHS, तो हम LHS इक्वल टू RHS भी शो कर सकते हैं. अगर आप ऐसे करते हैं तो भी ठीक है. एंड इन प्रोडक्ट के केस में भी अल्फा बीटा इक्वल टू सी बाई लेकर दोनों साइड करें और फिर सेम आंसर ले तो भी चलेगा. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. Find the zeros of polynomial x square minus 3. अब यहाँ पे px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3 है. यहाँ पे x वाला टर्म मिसिंग है, यानी कि b इज 0, राइट. अगर नहीं समझ में आए तो आप लिख सकते हैं कि a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 0 और c इक्वल टू माइनस 3, क्योंकि यहाँ मिस्टेक का चांस है. बच्चे कभी कभी b की जगह पे -3 ले लेते हैं जबकि ये है c. तो इस तरह लिख ले तो बेटर है. अब यहाँ पे हमारे पास पहले तो जीरोस फाइंड करने हैं, सो वी नीड टू फाइंड फैक्टर्स ऑफ दिस px. अब हमारे पास दो ही टर्म है और दोनों फर्स्ट इज परफेक्ट स्क्वायर एंड सेकंड को भी हम परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं. सो वी कैन राइट लाइक दिस एक्स स्क्वायर माइनस √3 होल स्क्वायर, राइट. सो ये हमारा कौन सा आइडेंटिटी आया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सो इट इज a प्लस बी दैट इज x प्लस √3 एंड अनदर ब्रैकेट a माइनस b दैट इज x माइनस √3. So therefore x plus √3 equal to 0. This implies x equal to minus √3 and x minus √3 equal to 0. This implies x equal to √3. Let alpha beta are zeros of px. Therefore alpha is minus √3 and beta is √3. Now we have to अगेन वी हैव टू वेरीफाई रिलेशनशिप. तो रिलेशनशिप के लिए ऐसे ही करेंगे, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा दिस इक्वल टू माइनस √3 प्लस √3 इज इक्वल टू 0 एंड माइनस बी बाई ए इक्वल टू बी हमारा 0 है, सो माइनस 0 बाई 1 दिस इक्वल टू 0. देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए वेरीफाइड. Another product of zeros, this equal to alpha beta equal to minus √3 into √3, that is equal to √3 into √3 is 3, so it is minus 3. And c by a is equal to c क्या है -3 and a is 1, this is also -3. Therefore alpha beta equal to c by a. Second relationship also verified. Now next question. यहाँ पे हमें find a quadratic polynomial दिया है, यानी कि हमें quadratic polynomial given नहीं है. Here we have to find quadratic polynomial. The sum and product of zeros whose zeros are -3 and 2. तो -3 क्या है, alpha plus beta and 2 is alpha into beta, product of zeros, right. Here we have to find polynomial. So let alpha beta be zeros of px. Therefore sum of zeros alpha plus beta equal to क्या है, -3 and alpha beta equal to 2. अब यहाँ पे एक फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए, व्हेन सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर गिवन. तो रिक्वायर्ड, और यू कैन राइट डायरेक्टली px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा. ये फॉर्मूला है, इसे कैसे याद रखना है, एक्स स्क्वायर तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आएगा ही, तो ये हो गया. और यहाँ पे अगर आप लिखना चाहे तो k भी लिख सकते हैं, k इंटू एक्स स्क्वायर. k पूरे के साथ आएगा ब्रैकेट में ये, वेयर k इज कांस्टेंट, एनी कांस्टेंट, राइट. तो k अगर कांस्टेंट हमें नहीं, फ्रैक्शन आता है, मतलब कि अगर फ्रैक्शन आता है इसके अंदर किसी की वैल्यू,
अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा, उस केस में हम एलसीएम लेकर जो डिनोमीटर होता है उसको के फॉर्म में लिख देते हैं कि 1/this इज के। लेकिन जहाँ नहीं है वहाँ पे वी कैन राइट के इक्वल टू 1. सो दिस इक्वल टू, और वी कैन therefore required polynomial e इक्वल टू और इज क्या आएगा, k की जगह हम 1 डाल देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इज -3 x प्लस 2 दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 वेयर k इक्वल टू 1. ये हमारा पोलिनोमियल हुआ, राइट. सम ऑफ जीरो, इसे ऐसे याद रखना है कि px इक्वल टू k इज एनी कांस्टेंट होल इनटू एक्स स्क्वायर, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल तो एक्स स्क्वायर आएगा, माइनस यानी कि एक्स स्क्वायर वाली टर्म पॉजिटिव तो सेकंड टर्म एक्स वाली टर्म नेगेटिव, देन थर्ड टर्म अल्फा बीटा इज पॉजिटिव, ऑल्टरनेट टर्म रहेगा प्लस माइनस, फर्स्ट इज पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव लाइक दैट, एंड k is constant, right? Now we will learn another relationship that is between coefficients of cubic polynomial and zeros. तो यहाँ पे हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल में डिग्री 3, इसके 3 जीरोस आएंगे एंड जीरोस आर अल्फा बीटा एंड गामा. लेट अल्फा बीटा एंड गामा आर जीरोस ऑफ cubic polynomial ax cube plus bx square plus cx plus d where a should not be equal to 0. Then relationship यहाँ पे 3 relationship है. First is sum of zeros that is alpha plus beta plus gamma equal to minus b by a. ये तो हमारा quadratic polynomial में भी था लेकिन यहाँ पे 2 ही जीरो थे और यहाँ ये प्लस यहाँ पे coefficients change हो जाएंगे. Here coefficient of b coefficient is coefficient of x square and c is and a is coefficient of x cube, right? Then second relationship is sum of product of two zeros taken at a time, taken two zeros at a time. sum of, sum तो है लेकिन प्रोडक्ट भी है दो जीरो का, तो sum of product of two zeros taken at a time, एक ही बार में 2 जीरो का प्रोडक्ट और फिर तीनों का सम. So alpha beta plus beta gamma plus alpha gamma that is equal to c by a, where c क्या है, coefficient of x and a is coefficient of x cube. And third relationship is product of zeros that is alpha beta gamma equal to minus d by a, where d is constant term and a is coefficient of x cube, right? तो ये relationship इसकी याद रखनी है. इसके बेस पे एग्जाम में एक आध क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में दिया है तो आ भी सकता है, ठीक है. तो इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम में आते ही हैं, इसीलिए इन क्वेश्चंस की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें. सो वी विल सॉल्व वन एग्जाम्पल बेस्ड ऑन क्यूबिक पोलिनोमियल, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल. So here verify that 3 minus 1 and minus 1/3 are zeros of cubic polynomial. This is given cubic polynomial and verify relationship between zeros and coefficients. तो हमें पहले तो ये बताना है कि वेरीफाई करना है कि whether they are zeros or not. तो क्यूबिक पोलिनोमियल है तो हम पहले लिखेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल px इक्वल टू 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3. लेट अस चेक p ऑफ 3, मतलब कि 3 जीरो है कि नहीं चेक करते हैं. उसके लिए क्या करना पड़ता है, वो पर्टिकुलर वैल्यू को वी हैव टू रिप्लेस बाय x. सो x की जगह 3 आ जाएगा तो p3 इक्वल टू 3 इंटू 3 क्यूब माइनस 5 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 11 इंटू 3 माइनस 3. दिस इक्वल टू 3 इंटू 3 क्यूब इज 81 और एक और 3 रेज टू 4 हो जाएगा, दैट इज 81, राइट. 3 क्यूब इज 27 इंटू 3 इज 81 माइनस 3 स्क्वायर इज 9, 5 जा 45, देन माइनस 11 3 जा 33 माइनस 3. कितना आएगा यहाँ, 81 पॉजिटिव है, इन सबको ऐड करेंगे तो 36 और ये तो 81 माइनस 81 दैट इज इक्वल टू 0. सो वेरीफाइड दैट 3 is 0 of px. Then second we'll check for minus 1. So p of minus 1 equal to 3 into minus 1 cube minus 5 into minus 1 square minus 11 into minus 1 minus 3. This equal to minus 1 का cube is minus, right? So it is minus 3. Then minus 1 square is positive into 5 is minus 5
माइनस माइनस प्लस 11 माइनस 3, तो यहाँ पे 3 प्लस 8 प्लस 3 इज 11, माइनस 11 एंड 11, 11 minus 11, this equal to 0. And last is p of minus 1/3. This equal to 3 into minus 1/3 का क्यूब माइनस 5 इंटू माइनस 1/3 स्क्वायर माइनस 11 इंटू माइनस 1/3 माइनस 3. तो ये है हमारा 3 इंटू माइनस 1/3 का क्यूब, दैट इज 3 इंटू माइनस 1/27. देन माइनस ये माइनस 1/3 स्क्वायर इज पॉजिटिव, so minus 5 upon 3 square is 9. Minus minus 11 into minus 1/3 is minus minus plus 11 by 3. And this is minus 3. This equal to, ये हमारा 9 हो गया 3 से, so it is minus 1 by 9 and minus 5 by 9. That is minus 6 by 9. Plus 11 by 3 minus 3. ये हो गया 2/3, यानी कि minus 2/3 और plus 11 by 3. तो हो गया हमारा LCM 3, तो हो जाएगा 9 by 3 minus 3 is 3 minus 3 is 0, right? Therefore 3 minus 1 minus 1/3 are zeros of px, right? Let's say alpha, beta and gamma are zeros. Let alpha, beta, gamma are zeros of px, right? अब यहाँ पे अल्फा बीटा गामा 3 जीरो हमने एज्यूम कर लिया, तो उसकी रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है. सो डायरेक्टली लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू, अल्फा क्या था हमारा 3 प्लस बीटा इज -1, और पहले मेंशन कर लो 3 अल्फा इक्वल टू 3, बीटा इक्वल टू -1 एंड गामा इक्वल टू -1/3. सो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 3 प्लस -1 प्लस -1/3. 3 minus 1 is 2, 2 minus 1/3 is 5/3, राइट? और अगर हम इसका b बाई a करते हैं माइनस b बाई a, तो पहले तो पोलिनोमियल लाना पड़ेगा. पोलिनोमियल में b क्या है? b इज कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, सो माइनस माइनस 5/3 माइनस माइनस 5/3, माइनस माइनस प्लस हो गया, दिस 5/3. देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस b बाई a. ये हमने एक वेरीफाई किया. नाउ सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 zeros taken at a time, that is alpha plus beta plus beta, alpha beta plus beta gamma plus alpha gamma, alpha beta plus beta gamma plus alpha gamma. This equal to क्या है हमारे पास? अल्फा बीटा 3 इंटू -1 प्लस -1 इंटू -1/3 प्लस 3 इंटू -1/3. तो ये क्या आएगा? -3 और ये माइनस माइनस प्लस, दैट इज 1/3 एंड यहाँ 3 3 कट, तो -1, राइट? तो ये होगा -4. सो 1/3 -4 इज 1 minus 12/3, दैट इज इक्वल टू -11/3. और c बाय a करेंगे, c बाय a इक्वल टू, c क्या है हमारा? c है हमारा -11. अगर यहाँ लिखना है तो लिख भी सकते हैं, a इक्वल टू 3, b is -5, c is -11 एंड d is -3. नेगेटिव साइन को भूलना नहीं है, वरना आंसर रॉन्ग हो जाएगा. जो भी नंबर है उसके आगे प्लस है तो चलेगा, लेकिन माइनस है तो माइनस साइन के साथ ही लिखना है, अदरवाइज योर आंसर विल बी रॉन्ग. तो यहाँ हमारा c और a, c क्या है? -11 एंड a is 3. So this equal to -11 upon 3. Therefore alpha beta plus, यहाँ पे लिखते हैं एंड में, therefore
अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इक्वल टू सी बाय ए. दिस इज अगेन वेरीफाइड. नाउ थर्ड, यहाँ से एक किया फर्स्ट, दिस इज सेकंड, एंड थर्ड इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, दैट इज अल्फा बीटा गामा. So alpha is 3 into beta is -1 into -1/3 is gamma. 3 will be cancelled, minus will be positive, so this equal to 1, and we will do minus d by a. This equal to d क्या है हमारा? d है -3 और a is 3. d is -3 and a is 3. Minus 3, that is equal to 1. Therefore, alpha beta gamma equal to minus d by a. तीनों relationships verified. Right? तो यहाँ पे हमने क्यूबिक पोलिनोमियल के जीरोस का रिलेशनशिप कोएफिशिएंट्स के साथ प्रूव किया कैसे होता है. ये इसमें कंडीशन तीन आएगी, तो फिर रिलेशनशिप 3 है, इसलिए थोड़ा लेंदी है, तो इसके बेस पे और थोड़े 3-4 प्रैक्टिस कर लेना है. सो हियर वी हैव फिनिश्ड द चैप्टर. नाउ विल समराइज whatever points we have studied. First of all, polynomials of degree. Polynomials of degree 1, 2 and 3 are linear, quadratic and cubic polynomial respectively, right? Then quadratic polynomial in x with real coefficients of the form ax square plus bx plus c होता है, where a, b, c are real numbers and a is not equal to 0. Then zeros of polynomial px are the x coordinate of the line और पैराबोला. जो भी कर्व आएगा या लाइन आएगी वो जहाँ पे x एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है ग्राफिकली, वो x एक्सिस पे जिस पॉइंट को इंटरसेक्ट करेगी उसका x कोऑर्डिनेट इज 0 ऑफ पोलिनोमियल. देन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट 2 zeros and cubic polynomial can have at most 3 zeros. At most बोला जा रहा है, कम भी हो सकता है. Then relationship between zeros of quadratic polynomial, तो alpha plus beta equal to minus b by a and alpha beta equal to c by a. And for cubic polynomial, 3 relationships, alpha plus beta plus gamma equal to minus b by a, alpha beta plus beta gamma plus alpha gamma equal to c by a, and alpha beta gamma equal to minus d by a, right? तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे. तब तक क्या करना है, पीक्यू पाठशाला को सब्सक्राइब कर लेना है, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.